بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میرے دادا جان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے ساتھ جنات کا سایہ ہے، مگر میں ان باتوں کو نہیں مانتا تھا۔ کچھ دن کے بعد میرے والد صاحب کہنے لگے، تم امتحانات سے فارغ ہو گئے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ دن کے لیے گاؤں میں اپنے دادا جان کے پاس چلے جاؤ۔ ابا کی بات سن کر پہلے تو میں اس بات پر آمادہ نہیں ہوا، مگر پھر دادا جان کے بارے میں کافی سارے دلچسپ انکشافات میں سن چکا تھا، اسی لیے سوچا کہ سیر کی سیر بھی ہو جائے گی اور دادا جان کے بارے میں حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی، کیونکہ میں نے دادا کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا تھا۔ ہم بچپن میں ہی پڑھائی کے سلسلے میں شہر آ گئے تھے۔ دادا ہمارے گاؤں میں فصلوں کی دیکھ بھال کیا کرتے اور پرانے گھر کی بھی۔ تبھی والد صاحب کے کہنے پر ایک دو بار میں ہی میں رضامند ہو گیا اور اگلے دن ڈرائیور مجھے گاؤں چھوڑ آیا۔ گاؤں جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارا گاؤں کس قدر خوبصورت ہے۔ شہر کی گھٹن زدہ فضا سے زیادہ اچھا تو یہاں کی پرفضا مقامات تھے، جن میں آتے ہی انسان کو ایک عجیب سی سرشاری ہونے لگتی۔ میرے دادا اصولوں کے پکے تھے۔ میں رات کے تقریباً 12 بجے دادا کے گھر پہنچا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ دروازہ ان کے ملازم خالد نے کھولا۔ میں تو یہ دیکھ کر حیران ہی ہو گیا کہ دادا جان، جن کے پاس صرف 2-3 ہزار روپے پینشن آتی تھی، انہوں نے ایک کل وقتی ملازم رکھا ہوا تھا جو دن رات دادا جان کی خدمت کرتا۔ ابا جان نے تو کہا تھا کہ دادا بہت غریب ہیں، ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ کسی کے بھی پیسے چکائیں، لہٰذا پچھلے مہینے ہی دادا کا سارا قرض ابا جان نے خود ادا کیا تھا۔ گاؤں کے گھر بجلی کا بل آتا، وہ بھی ابا جان کی جیب سے ہی جاتا۔ زیادہ تر والد انہیں پیسے بھیجتے رہتے تھے، مگر آج کل تو ملازم بھی اچھے خاصے روپے لینے لگے تھے۔ خیر، مجھے تو خالد پر ہی حیرانگی ہوئی کہ یہ دادا جان کا ملازم ہے، مگر اچھا خاصا پڑھا لکھا اور معقول نوجوان لگتا تھا۔ ابھی میں نے دادا جان سے بات نہیں کی تھی، مگر ان پر سے میرا اعتبار اٹھ چکا تھا۔ خیر، میں نے خالد سے اور کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی، اسے صرف اتنا کہا کہ مجھے ایک کمرہ دکھا دو۔ خالد ایک بہت ہی پر اخلاق اور خوش مزاج لڑکا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 25 سے 30 سال کے درمیان ہوگی۔ وہ شکل سے بہت خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھنے کے بعد اس سے گپ شپ کرنے لگا۔ اور سناؤ، شکل سے تو پڑھے لکھے لگتے ہو، پھر اتنی کم تنخواہ پر دادا کے ہاں ملازمت کیسے کرنے کا اتفاق ہوا؟ میری بات پر خالد ہنس پڑا۔ میں نے تو کبھی تمہارے دادا سے ایک پائی بھی نہیں لی۔ خالد نے بڑی ہی خود اعتمادی سے کہا تو مجھے اس پر حیرانگی ہونے لگی۔ کیا مطلب، تم دادا جان سے کوئی رقم یا تنخواہ نہیں لیتے؟ پھر تم دن رات ان کا کام کیوں کرتے ہو؟ اس کے حلیے سے مجھے وہ پکا ملازم ہی لگا تھا، سو میں نے تو یہی سمجھا کہ وہ دادا جان کا ملازم ہی ہے۔ میں کہاں، میں تو ان کا ایک معمولی سا خدمت گزار ہوں۔ ویسے بھی آپ کے دادا ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی خدمت انسان تو کیا، جنات بھی کرتے ہیں۔ ان کی نیک شخصیت ہی کے کارن سبھی لوگ ان کو اس گاؤں کا معزز ترین شخص مانتے ہیں۔ گاؤں میں کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ آپ کے دادا ہی کرتے ہیں۔ خالد کے منہ سے دادا کی مزید تعریفیں سننے کے بعد میں زیادہ متاثر نہیں ہوا۔ میں نے اپنی بات پر دوبارہ سوال کیا، دادا تمہیں تنخواہ نہیں دیتے تو تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ کیا تمہارے گھر والے نہیں ہیں؟ صحیح پہچانا آپ نے، خالد نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے میرے سامنے چائے اور لذیذ بسکٹ رکھے جو گاؤں کے خالص دیسی گھی میں بنائے گئے تھے۔ ان سے ویسی ہی خوشبو آ رہی تھی۔ بڑے ہی لذیذ قسم کے بسکٹ تھے۔ میں چائے کے ساتھ ساتھ بسکٹ کھانے لگا۔ خالد مجھے دادا کی باتیں بتانے لگا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، خالد نے پریشانی سے کہا، بس آپ کے دادا ہی میرا سب کچھ ہیں۔ وہ میرے استاد محترم ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اسی لیے میں ان کی خدمت میں لگا رہتا ہوں۔ یہ موقع تو انہوں نے مجھے میری ہی درخواست پر دیا تھا، ورنہ آپ کے دادا اپنے سبھی کام خود کرتے ہیں۔ آج کل بھی وہ اپنا سودا تک دکان سے خود لے کر آتے ہیں۔
मैं कहूँ भी तो मुझे जाने नहीं देते। मुझे तो शर्मिंदगी होती है कि मैं उनकी खिदमत का और उस्तादी का सही तरीके से हक़ अदा नहीं कर सका। इन्होंने बचपन से मुझे पढ़ाया है। मेरे माँ बाप नहीं थे, मुझे घर में पनाह दी। मेरे लिए कभी इन्होंने कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि जिसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हों, लोग उसके बारे में अजीब अजीब बातें कर जाते हैं, मगर दादा जान ने मुझे कभी ऐसी कोई बात नहीं कही। मैं उन्हें बड़े अब्बू कहता हूँ। खालिद ये कहकर सादतमंदी से खामोश तो हो गया, मगर मेरे दिल में अब वाकई दादा की इज़्ज़त बढ़ गई थी। अगर उन्होंने इस खालिद नामी लड़के को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था तो फिर उसका इनके घर में खिदमत करना कोई मायूब बात नहीं थी। खैर, खालिद ने मुझे बिस्किट से पेट भरने पर मजबूर कर दिया। बिस्किट थे भी इतने लजीज कि मैं खुद उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहता था। मैंने जाते जाते उससे पूछ लिया, खालिद, ये बिस्किट क्या यहीं गांव में बनते हैं? जी नहीं, ये आपके दादा जान ही कहीं से लाते हैं, हम तो इस बारे में नहीं जानते। हो सकता है कि ये दूसरे जहां से आए हों, खालिद ने मजाक के अंदाज में कहा और ट्रे लेकर कमरे से बाहर चला गया। मैं सोचता ही रह गया, दादा तो वाकई बड़ी ही करिश्माती शख्सियत के मालिक थे। अगर ऐसा था तो फिर मुझे उनकी सच्चाई ज़रूर जानना थी, क्योंकि मैं इन जिन भूतों पर और किसी गैर मावराई नादीदा मखलूक पर यकीन नहीं रखता था। मैं शहर की फ़िज़ा में सफ़र करने से काफ़ी थक गया था। खालिद के जाते ही मैं आंखें मूंदे सो गया। रात कैसे गुजरी मुझे पता ही नहीं चला। बहुत पुरसुकून नींद आई थी। सुबह के तकरीबन 6-7 बजे खालिद ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने खुशी खुशी मेरा इस्तकबाल किया। शायद वो अपने हम उम्र नौजवान के इस घर में आने पर बहुत खुश था। वो मुझे नाश्ते के लिए बुला रहा था। मैं मुंह धोकर नाश्ते की मेज़ पर आ बैठा। दादा जान से सलाम दुआ हुई। दादा वाकई बहुत पुरनूर और मोअज़्ज़ज़ शख्सियत के मालिक थे। इन्होंने मुझसे ज़्यादा बातचीत नहीं की, खामोशी से नाश्ते की मेज़ पर बैठ गए। मैं उनसे हाल अहवाल और गांव के वाक़यात के बारे में पूछने लगा। दादा जान की पलकें तक सफ़ेद हो चुकी थीं। वो ज़ईफ़ी की शायद आखिरी सतह पर थे। मैं उन्हें देखकर दिल ही दिल में सोचने लगा कि हम कितने बदकिस्मत हैं जो दादा जैसी शख्सियत से, उनकी प्यार मोहब्बत और शफ़क़त से महरूम हैं। खैर, मैंने फ़ैसला कर लिया कि इन 6-7 दिनों में दादा जान की खिदमत करूँगा और उन्हें शहर जाने के लिए आमादा करने की कोशिश करूँगा। थोड़ी ही देर में, अभी हम नाश्ता कर ही रहे थे कि खालिद वहाँ आ गया। उसने भी नाश्ता शुरू किया। फिर जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म करने के बाद उसने अपनी जेब से एक लंबी सी लिस्ट निकाली और दादा जान के सामने रख दी। दादा जान सामान की लिस्ट देखकर खामोशी से खड़े हो गए। चलो, मैं जा रहा हूँ सौदा सर्फ लेने। बेटे, तुम खालिद के साथ गपशप लगाओ, मैं जल्दी ही वापस आता हूँ। क्या मतलब दादा जान, आप अकेले सौदा लेने जाएंगे? मैंने पूछा। हाँ, तो इसमें कोई हर्ज है क्या? मैं हमेशा अकेले ही सौदा सर्फ लेने जाता हूँ। यकीन ना आए तो खालिद से पूछ लो। दादा पहली बार मुस्कुराकर बोले। मुझे उनकी हंसी अच्छी लगी थी। उनकी हाथ में मौजूद लिस्ट पर मेरी नज़र पड़ी तो ये देखकर मुझे खासी हैरानगी हुई थी। इस लिस्ट में तो अच्छा खासा गल्ला लिखा हुआ था जो दादा जान ने घर लेकर आना था। दादा जान, आप इतनी सारी चीज़ें अकेले घर कैसे लाएंगे? मैं आपके साथ चलता हूँ। वहाँ पर जाकर हम अपनी मर्ज़ी से सामान लेंगे और फिर किसी मज़दूर को पैसे देकर घर तक ले आएंगे। बेटे, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी मज़दूर को पैसे नहीं दिए, दादा ने कहा और बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गए। अच्छा ठीक है दादा, मैं आपका मज़दूर बन जाता हूँ। आज मैं आपके साथ चलूँगा, हम मिलकर सौदा लाएंगे। नहीं बेटे, तुम घर पर ही रुको, दादा जान ने मुड़ते मुड़ते जवाब दिया। सवाल ही पैदा नहीं होता दादा, अब्बा ने मुझे आपकी खिदमत के लिए भेजा है, मगर फ़िलहाल तो कल से आप मेरी खिदमत कर रहे हैं। मैंने कहा तो दादा जान ने मुझे घूर कर देखा। चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मगर मेरे पीछे नहीं। तुम्हें मुझसे एक कदम आगे चलना होगा और ख़बरदार, मेरे पीछे की तरफ पलट कर देखने की हिम्मत भी नहीं करना। मैंने तुम्हें जिस बात से मना किया है उसमें कोई ना कोई हिकमत ज़रूर है, समझे मेरी बात? दादा ने ये कहकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने आगे खड़ा कर दिया। चलो, अब तुम सीधा रास्ता पकड़कर चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। दादा ने ये कहकर मुझे गोया किसी कमांडर की तरह चलाना शुरू कर दिया। अब मैं उनके पीछे पीछे और वो मेरे आगे आगे थे। थोड़ी ही देर के बाद हम अब पक्की सड़क पर मौजूद थे।
दादा ने गाड़ी करने की बजाय मुझे पैदल चलने का ही मशवरा दिया। बोले, इससे खून का दौरानिया तेज़ होता है और बुढ़ापे में तो वॉक करना बहुत ज़रूरी है। खैर से दादा अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों की तरह बातें करते थे। मैंने उनसे किसी बात पर इख्तिलाफ़ नहीं किया। थोड़ी ही देर में हम लोग दुकान पर पहुंच गए। ये दुकान गल्ले यानी कि सादा सल्फ से भरी हुई थी। दादा ने सामान वाली पर्ची उस आदमी को थमा दी। उसने कुछ छोटे छोटे पैकेट बनाए, फिर उन सबको एक बड़े थैले में बंद कर दिया। एक तो आटे के थैले भी थे जो उसने दादा जान को लिख कर दिए थे, यानी कि खालिद की दी हुई सारी चीज़ें दादा जान घर ले जा रहे थे। मुझे हैरत थी कि आटे के 2 थैले दादा जान उठाकर कैसे ले जाएंगे, क्योंकि बकौल उनके वो तो मज़दूर को भी पैसा नहीं देते थे। फिर दादा जान ने दुकानदार से कहा, ये थैले मेरी कमर पर रखवा दो। ये देखकर मेरी तो हाय ही निकल गई। दादा, आप ये सब कैसे उठाएंगे? आधी चीज़ें मैं ले चलता हूँ। मैंने दादा को पेशकश की, मगर इन्होंने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। एक बार फिर से दुकानदार को बोले, मेरी कमर पर ये सारे थैले रख दो और ये बाकी छोटी मोटी चीज़ें इस लड़के को दे दो। दादा जान ने कहा तो मैं समझा कि दरअसल दादा खुद को मुझसे ज़्यादा ताकतवर और लहीम शहीम समझते थे। खैर ऐसा तो कुछ था नहीं। दादा दुबले पतले से हाँ मगर लंबे कद के शख्स थे। मैंने दादा की लाख मिन्नत की, दादा जान मुझे ले जाने दें, ये इतना भारी सामान आप अकेले कैसे लेकर जाएंगे? मगर दादा थे कि इन्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं आता था। बस तुम आगे चलो, मैं ले आऊँगा। दादा ने मुझे गोया हुक्म दिया। मजबूरन मैं उनके आगे आगे चल पड़ा। दादा जान पीछे आ रहे थे। उनकी इस बात ने मुझे हैरान भी किया कि इस उम्र में वो इतना ज़्यादा वज़न कैसे उठाने के काबिल हैं। खैर काफ़ी दूर चलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि दादा मेरे पीछे नहीं हैं। मैंने पलटकर देखा तो वो सामने ही मौजूद एक घर में दाखिल हो रहे थे। मैं उनके पीछे वापस भागा। दादा जान ने मुझे आते हुए देख लिया तो इशारे से मना करने लगे। मैं रुका नहीं तो मुझे आवाज़ देकर कहा, बेटे तुम उधर रुके रहो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर दादा जान उस कच्चे से घर में दाखिल हो गए। मुझे हैरत हुई कि दादा आते आते इस कच्चे घर में क्यों चले गए। आखिर कोई तो वजह होगी। मुझे दादा की मदद करनी चाहिए। ये सोचकर मैं दादा की तरफ चला गया, मगर वो अभी घर के सहन में ही मौजूद थे। मैंने क्या कहा था कि तुम यहाँ नहीं आना, तुम फिर आ गए। दादा ने मुझे सख्ती से कहा। मैं वहाँ से पीछे हट गया। अब मेरे पास वापस घर जाने के और कोई चारा नहीं था। आखिर दादा इस खाली घर में इतना सारा सामान और राशन लेकर क्यों दाखिल हुए थे, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। खैर दादा अंदर कमरे में चले गए। मैं घर की अगली तरफ आ गया, जहाँ पर घर के अंदर मौजूद खिड़कियों से अंदर का मंजर साफ नज़र आता था। मैंने जाली से सर लगाया, अंदर की तरफ देखने लगा। मेरी तो हैरत की इंतहा न रही। कमरे में इंतहाई खूबसूरत सुनहरी नीले पीले लिबास में मलबूस लड़कियां बैठी थीं, जिनकी खूबसूरती को कोई भी देखता तो उन पर फिदा हो जाता। आज तक मैंने शहर में बहुत हसीन लड़कियां भी देखी थीं, मगर उस जैसी मासूमियत किसी में नहीं थी। उनमें एक लड़की इतनी खूबसूरत थी कि कोई देखे तो अपने हवास ही खो बैठे। मगर फिर मुझे हैरत इस बात पर हुई कि दादा उन लड़कियों के दरमियान बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे। दादा जान ये क्या हो रहा है, मैंने दिल ही दिल में सोचा। फिर दादा के पहलू में बैठी एक लड़की को इन्होंने सर पर दिलासा दिया, फिर जेब से निकाल कर मिठाई नुमा कोई चीज़ दी और फिर से उन लड़कियों के साथ बातों में मसरूफ़ हो गए। मैं ये सारा मंजर देखकर बहुत हैरान था। दादा से मुझे इस बात की तवक्के नहीं थी कि वो लड़कियों से इतने खुले ढुले होकर मिलते होंगे। वो तो हमेशा इस्लाम का प्रचार करते, यही कहते कि मैं एक अच्छा मुसलमान बनना चाहता हूँ कि मेरा ख़ात्मा बिल ईमान हो और जब मैं अल्लाह के सामने जाऊँ तो मैं शर्मिंदा ना हूँ। दादा की ये बातें मुझे एक तरफ मुतासिर भी करती थीं, मगर उनके कौलो फेल में तज़ाद देखकर मुझे सख्त हैरत भी होती और गुस्सा भी आता। मैं बाहर आकर खड़ा हो गया। दादा 2 घंटे से अंदर कमरे में ही गए हुए थे। अब मुझसे सब्र नहीं हुआ। मैं उसी सहन से होता हुआ दरवाजे तक पहुंचा, जिसके अंदर दाखिल होते मैंने दादा जान को देखा था। मगर काफ़ी दस्तक के बाद भी जब कोई कमरे के बाहर ना आया तो मुझे फ़िक्र होने लगी। मैं पलटकर दूसरी तरफ जाने ही वाला था कि पीछे से दरवाज़ा खुला और दादा जान ने फ़ौरन से दरवाज़ा बंद करके मेरा रुख कर लिया।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम यहाँ नहीं आना, फिर तुम मना क्यों नहीं हुए? दादा जान निहायत गुस्से में पूछ रहे थे। दादा, काफ़ी देर हो गई थी, मैं आपका हाल अहवाल पूछने आया था। हाँ, मुझे क्या हो जाना है, 10-20 मिनट ही की तो बात थी। तुमसे जो मैंने कहा तुमने उस पर अमल नहीं किया, मगर दोबारा इस सब की जुर्रत नहीं करना। दादा जान ने रूखे फीके लहजे में कहा। मुझे उनके गुस्सीले तेवर समझ आ गए थे, सो खामोशी से उनके साथ साथ चल पड़ा। दादा जान के कंधे पर अब भी बेशुमार सामान मौजूद था, मगर उनके चेहरे पर नूर ही नूर बिखरा हुआ था और वो बहुत हल्के फुल्के लग रहे थे। उनके चलने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई जवान शख्स चलता हो। खैर, मैं यही समझने लगा कि शायद ये दादा की कोई रिश्तेदार ख़वातीन होंगी या फिर ये इनकी उसी खालिद की तरह कुछ शागिर्द वगैरह होंगी जिनसे दादा मिलने गए होंगे। मगर मेरे दिल में एक तजस्सुस बैठ चुका था। मैंने दिल में तहैया कर लिया कि दादा जान ने जिन लड़कियों के घर जाकर उन्हें दिलासा दिया था, मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थीं कि उनमें से अगर कोई एक भी मुझे मिल जाती, किसी एक का भी साथ नसीब हो जाता, तो ज़िंदगी हसीन हो जाती। मैंने दादा से इस बात का जिक्र नहीं किया, ना ही उनसे ये कहा कि आप जहाँ गए थे वो लड़कियाँ कौन थीं, वो घर किसका था। मगर लड़कियों की मौजूदगी से मुझे इतना ज़रूर मालूम हुआ था कि इस घर में अक्सरियत लड़कियों की है। मैंने इस घर का पता भी याद कर लिया। अगले दिन तो दादा ने मुझे लेकर नहीं आना था, क्योंकि सामान और सौदा सल्फ वगैरह एक ही बार लाया जाता है। मैंने ये सोचकर इत्मीनान का सांस लिया कि चलो, मैं अकेले तो इस घर तक आ पाऊँगा। फिर वैसे भी गांव की सड़कें कच्ची थीं। मेरा जी नहीं चाहता था कि मैं यहाँ का सफ़र भी पैदल तय करूं, मगर क्या करता। सड़कें इतनी टूटी फूटी थीं कि यहाँ तक कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल, हत्ता कि साइकिल तक भी नहीं जाती थी। खैर, मैं अगले दिन का इंतज़ार करने लगा, मगर उससे पहले मैंने खालिद से बात की। खालिद को जब ये सारा मामला बताया तो वो कानों को हाथ लगाने लगा। छोटे साहब, आपको क्या हो गया है? आप तो ऐसी बातों में मत पड़िए। दादा जान ने जो भी किया वो उनके लिए सही था। वो एक हादसा हो या फिर कोई इत्तेफाक हो, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। आपके दादा जो कुछ जानते हैं वो बिल्कुल सही है, और हम कभी भी उनके उस मर्तबे तक नहीं पहुंच सकते जो अल्लाह ने उन्हें अता किया है, खालिद ने कहा, और फिर खामोशी से मुझे देखने लगा। मुझे इस वक्त वो बहुत जाहिल और तोहम परस्त लग रहा था। मैंने उससे मज़ीद कोई बात नहीं की और घर से निकल आया। मैं जानता था वो लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं, उनसे मिलकर मुझे खुशी ही होगी। मैं कौन सा उनसे कुछ मांग रहा था, बस एक मुलाकात ही की तो ख्वाहिश थी। अब अगर मैं दादा को बता देता तो वो 1000 रिश्ते दरमियान ले आते। खुदा जाने वो उनकी क्या लगती थी। खालिद ने भी उनको जानने पहचानने से इनकार कर दिया। मुझे लगा ये तो दादा का चमचा है, इसने अभी तक मुझे कोई सही बात बताई ही कहाँ होगी। अगले दिन दादा से किसी काम का कहकर मैं घर से निकल गया। मेरा इरादा था कि उसी घर जाकर दरवाजे पर दस्तक दूंगा, कोई न कोई चीज़ भी ले जाऊंगा जिससे वो लड़कियां खुश हो जाएं। फिर मैंने एक दिन पहले की सारी कार्रवाई सोची। मुझे याद आया कि दादा ने जिस लड़की को मिठाई से भरा डिब्बा दिया था वो तो उसने फ़ौरन ही ख़त्म कर लिया, लेकिन भुनी हुई चीज़ों को उसने हाथ भी नहीं लगाया। हालांकि दादा जान ने खाने की काफ़ी सारी चीज़ें ली थीं और शायद इन्हीं लोगों के लिए ली थीं, क्योंकि दादा जान ये सब घर लेकर नहीं जाते थे। यही सोचकर मैं मुकामी दुकान पर गया। यहाँ पर खालिस लड्डू, जलेबी और बाकी मिठाइयाँ बनती थीं। मैंने मिठाई वाले को 500 रुपये देकर 1 किलो लड्डू पैक करने का कहा। उसने लड्डू मेरे सामने रख दिए। मैंने लड्डू का डब्बा लेने के बाद उस आदमी से पूछा कि फ़लाँ जगह जो घर वाक़ई है वहाँ कौन रहता है। ये बात मैंने बातों बातों में ही पूछी, मगर उसने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। खैर, मुझे अपनी मोहब्बत की राह खुद ही तलाश करनी थी। मिठाई लेकर जब मैं उस घर के करीब पहुँचा तो मुझे वो बाहर से ही वीरान और सन्नाटे वाला लगने लगा। मुझे ये बात याद आई जो मुझे खालिद ने कही थी कि दादा जान की अक्सर बातों की हमें समझ नहीं आती, मगर मैंने सोच लिया था कि यहाँ से 1 इंच नहीं हिलूँगा जब तक उन लड़कियों की हकीकत मालूम नहीं कर लेता। फिर जैसे ही मैंने उनके उस कमरे का दरवाज़ा बजाया जहाँ मैंने कल अपने दादा जान को देखा था, तो दरवाज़ा नहीं खुला। मुझे सख्त तौहीन का एहसास हुआ। सोचा कि पिछली खिड़की से जाकर देखता हूँ यहाँ कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा। तभी मैं दरवाजे के अकब की तरफ आ गया और घूमकर खिड़की के अंदर देखा
تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو کل ہی دادا جان کے سامنے ان لڑکیوں کو بیٹھے دیکھا تھا۔ پھر میں نے جا کر سامنے سے دروازہ کھولا کہ شاید مجھے صحیح منظرنامہ نظر نہ آیا ہو، مگر یہ دیکھ کر میری سخت حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں پر اس ویران گھر میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے الٹا لٹکی ہوئی ان خوفناک چمگادڑوں کے۔ ان چمگادڑوں کو دیکھتے ہی میرے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں وہاں سے بنا کوئی وقت ضائع کیے الٹے پاؤں واپس دادا کے گھر بھاگا۔ دادا کو اس بات کا علم نہیں ہوا، مگر خالد میرا دوست بن چکا تھا۔ میں نے اسے ساری بات سنا دی۔ وہ میری بات سن کر ہنس پڑا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، دادا کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی غیر معمولی چیز تم دیکھو گے۔ اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، آ گیا یقین۔ خالد نے مجھے بھرپور نگاہوں سے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ تم ہار گئے، میں جیت گیا۔ واقعی میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ دادا جان کے ساتھ جن غیر معمولی واقعات کا اظہار میں نے دیکھا، وہ ایک غیر معمولی بات تھی اور میں اسے زندگی بھر بھلا نہیں پاؤں گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔